ओके क्लास, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे अपने बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च को इन टर्म्स ऑफ C++ कोड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, हम कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखेंगे अपने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को। यहाँ पर मैं आपको वापस अपना दोबारा से प्रोजेक्ट ओपन करना इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को बार बार याद हो जाए। सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पे गए, विजुअल C++ पे, वहाँ से कंसोल एप्लीकेशन वी हैव टू सेलेक्ट and we have to assign a proper name to our project. That is, I'm going to assign searching techniques so that I can easily find out my this project by just using this searching technique. But I have practiced with this name, so I'm going to assign it 1 2 searching technique. Now I'm going to press this OK button. And then we have to press this next button, and from here we have to select this empty project and then finish. This is how we can create our application or start our new project in Visual Studio. And then we have to add our .cpp file by just right click over here and add new item. Okay class, now C++ file, and I'm going to assign name B or task .cpp. The extension of this file must be .cpp. Okay, this is the code area. Here we have to write our code. I have already written the code, and I'm going to give this practice code to you all as well. This is a I'm just going to copy paste over here, and one by one then I will discuss. Include IO stream, input output streams को include करवाने के बाद using namespace std. I have already told you guys what does this means for. Then now, what I am doing here, I have taken one integer, with the name of count I, and then array with the length of 30, number first, last, middle. These all are the integer array, integer num, integer. ये जो काउंट है आई है, एरे 30 है, नम है, फर्स्ट लास्ट मिडल, ये सब मेरे इंटेजर्स है। इंटेजर एरे ले ली 30 साइज की, और बाकी ये 4-5 मैंने इंटेजर्स ले लिए। नाउ सी आउट, यानी कि आपके पास यूजर के पास क्या आएगा, हाउ मेनी एलिमेंट्स वुड यू लाइक टू एंटर, देन सी इन। आपने क्या किया, आपने यूजर से एलिमेंट्स एंटर करवाए इन द एरे, और वो एरे में सेव करा लिए। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं मेरी कि एरे में सेव करवाने का क्या तरीका है। उसके बाद हमने क्या किया, एंटर द नंबर दैट यू वांट टू सर्च। हमने यूजर से ही पूछा कि आप उस एरे में से कौन सा नंबर सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि हम अपने बाइनरी सर्च में डेटा देते हैं। कॉन्सेप्ट में आप जाके देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में देखा हुआ है। तो उसके बाद जब हमने ये सर्च करवाया अपने कोड में, तो हमने सेम वही मिडिल का फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट प्लस लास्ट, मिड का फॉर्मूला लगाया, इसी तरह लास्ट इक्वल्स टू काउंट -1। सेम हमने यही काम करवाया जो हमने अपने कॉन्सेप्ट में देखा था, और हमने वही 3 कंडीशंस लगाई हैं जो 3 कंडीशंस हमने पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था। लेसर देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, ये 3 कंडीशंस लगा दी हमने, और हमने उन कंडीशंस को देखते हुए यहाँ पर अपना एक बता दिया, कोड बता दिया। ठीक है, हमने सिंपल उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को जस्ट इम्प्लीमेंट किया while using if and else condition in the while loop. ठीक है, now I'm going to build this project, that is from control F5. I'm going to press this control F5 and building my project. I have pressed control plus F5. Build succeeded. ठीक है, build succeeded means we have no error in our project. How many elements would you like to enter? Let's suppose I says 5, then enter number 1. Let's suppose I says 20, but we have
to be we have very careful about it because we are going to perform binary search, so हमारा data must be sorted. 20, then I'm going to write 21, then I'm going to write 24, then I'm going to write 26, then I'm going to write 28. Now what is the what code is saying to me, enter the number that you want to search. Okay, अब वो नंबर एंटर करना है जो मैं सर्च करना चाहती हूँ. आई वांट टू सर्च नंबर, let's suppose 26. 20, 26 founds in the array at the fourth location. 1 2 3 4. Okay, clear है? This is found in the fourth position. Press any key to enter. Now I'm going to give a number which is not present in the array, okay. Now I will write size of 5 again. 20, 21, 22, 23, 24, or I'm going to find out 2. Okay, 2 is, you guys can see 2 is not present in my this array. This is basically my array. 2 is not present over here, and then 2 not found in the array. Okay class, so not found का आप देखिए कहाँ पे हो रहा है, ये not found in the array number. ठीक है, it's a very 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 simple concept. ठीक है, now I'm going to write code for linear search so that we can easily understand, and linear search I'm going to write in hard code form ताकि हम लोगों को आसानी से जल्दी से linear search का concept clear हो जाए, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से 1 by 1 बाइनरी सर्च के कुछ टास्क डिस्कस करूंगी, प्रैक्टिस टास्क जो आपको करने हैं. ठीक है, कंट्रोल F5. यस, build succeeded. Element is present at index 3. Press any key to continue. Okay, this is the output of this code. Now what is the code saying? इंक्लूड करा दिया, सर्च करा दिया एरे के अंदर. सर्च के अंदर हमने एक एरे पास करा दिया और 2 इंटेजर्स को पास करा दिया. ठीक है, सर्च का हमारा एक कोई वो बना हुआ है फंक्शन जिसके अंदर हमने ये करा दिया है. उस सर्च के फंक्शन के अंदर बेसिकली हो रहा है क्या, इंटेजर आई इनिशियलाइज कराया हुआ है, उसके बाद n साइज तक वो चल रहा है, ये फॉर का लूप, और उसके बाद ये कंपैरिजन हुआ हुआ है. अगर इंडेक्स मैच कर गया तो वो रिटर्न कर दे इंडेक्स, अगर नहीं मैच किया तो रिटर्न कर दे -1, जैसे मैंने आप लोगों से जिक्र किया था -1 का. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, रिटर्न के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद हमने इंटीजर मेन के अंदर क्या हो रहा है, एक एरे ले ली हार्ड कोटेड जो 2 3 4 10 40 है, और हमने इंटीजर x जो है क्या ले लिया 10. हार्ड कोड है ये भी, ये यूजर से नहीं लिया, हम आप चाहो तो यूजर से भी ले सकते हो. अब आपने क्या कराया है, n को कंपेयर कराया, n इक्वल्स टू साइज ऑफ एरे. ठीक है, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ दिस एरे. Size of this array divided by size of this array. This array means this and this array means यहाँ पर आपने जो पास करा, यहाँ पे जो आपने वैल्यूज ली है इसकी, यहाँ पे जो आपने वैल्यूज सेव की. ठीक है, हमने क्या किया, इसको कंपेयर कराते हैं हम साइज के साथ डिवाइड करा रहे. उसके बाद हमने क्या किया, रिजल्ट इज इक्वल टू सर्च एरे nx, और रिजल्ट इज इक्वल टू -1, तो एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे. अगर रिजल्ट के अंदर हमारे पास -1 है तो ऑब्वियसली हमारे पास नहीं है, और अगर है तो फिर हमारा रिजल्ट शो हो जाए. सिंपल, बहुत सिंपल सा कोड है क्लास, आप लोग देख लीजिए, ये हमारा लीनियर सर्च का कोड है. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जैसे कि 10 है, अब यहाँ पर हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 40, 50 नहीं है. चलो हम फाइंड आउट करते हैं 50 को. अच्छा, हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे, हम यूजर से तो इनपुट ले ही नहीं रहे थे ना, हम तो यहाँ पर कर रहे हैं हार्ड कोड कर रहे हैं, तो हम हार्ड कोड करके फाइंड आउट करेंगे. कंट्रोल F5. यस, build succeeded. एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे. ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट किसका,
लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च के कोड की एग्जांपल्स मैंने आपको रन करके दिखा दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ हमारे जो टास्क हैं उन टास्क में आपको वन बाय वन करना क्या है। आई एम गोइंग टू शो यू गाइस दोस टास्क। आप लोगों को वो टास्क करने हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और आप लोगों को वो टास्क करके मुझे सबमिट कराना है, ठीक है। देखो ये देख लीजिए, थोड़ी सी थ्योरी दे दी है। अब यहाँ पर देखें टास्क नंबर 1 क्या, ट्रांसलेट द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम इनटू अ प्रोग्राम which finds the product C of n into M matrix and P into N matrix B. Test the program using this ये A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद आपने क्या करना है, सपोज A and B are n elements vector array in memory and x and y are scalars. Write a program to find x a plus y b a dot b, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और एड प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस ए बी एंड एक्स वाई। एक्स की वैल्यू दे दी, वाई की दे दी, ए का दे दिया सेट और बी का सेट दे दिया। अच्छा जी, ये भी बहुत इजी से आपके पास दो टास्क हैं, आपको ये करने हैं। ये बिल्कुल आप प्रीवियस लैब से ये इसका कॉन्सेप्ट दोबारा से आप रिपीट कर लीजिए। उसके बाद translate the linear search algorithm into a program which either find the location where item appears in array or return log equals to 0। linear search करना है, लोकेशन 0 दे दे -1 की जगह जहाँ पे हम -1 देख रहे थे, या फिर क्या कर दे आइटम अपीयर। ये तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है, ये तो मैं आप लोगों को रन करके दिखा भी चुकी हूँ, पर आप लोगों को क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। अब यू हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। Okay, translate binary search and insertion algorithm into a program which finds either the location where item appears in array or location where item should be inserted into array. For object 3, 4 and 5, take an array of 10 elements given below. Given below means ये 10 elements की array, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद write a program which uses binary search to search the element 5, 52 and 33 and print it। सिंपल बाइनरी सर्च का कोड लिखो, 52 और 33 को फाइंड आउट करो और प्रिंट कराओ। इसी तरह इसमें क्या करना है, 45 और 78 को फाइंड करके डिलीट कराएं। इसी तरह देयर आर, अच्छा ये जो है ये एक और कोड आ गया, देयर आर ओनली 10 टीम्स सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड कप। टीम्स टीम्स का जो एरे है वो क्या है, 5, 7, 9, 13, 32, 33, 42, 54, 56, 88, यानी कि 10 एरे, 10 टीम सेलेक्टेड हुई हैं। राइट अ प्रोग्राम विच यूजेस बाइनरी सर्च टू सर्च द एलिमेंट्स 14 and 42। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा क्लास हुआ कीजिए, 14 टीम नंबर 14 is not present in your given array and 42 is present in your given array। सो दोनों के अकॉर्डिंगली रिजल्ट आना चाहिए। 14 पे वो एलिमेंट नॉट फाउंड कहे और 42 पे वो कह दे कि एलिमेंट फाउंड, ठीक है। टीम इज फाउंड, टीम इज नॉट इन द लिस्ट, देन प्रिंट टीम इज नॉट सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप। अगर टीम प्रेजेंट नहीं है तो टीम इज नॉट सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप ये आ जाए, और 42 इसका मतलब टीम इज सिलेक्टेड को आपके पास आ जाए, ठीक है। ये सिंपल से आपके कुछ टास्क हैं जो आपको करने हैं, और बाकी तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू। बाकी क्वेश्चन आंसर सेशन को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम लोग आराम से फिर आगे कंटिन्यू कर सकें।